This is question number 6, mock test 6. Alpha, beta be the roots of x square minus 3x plus 9 equals to 0. Then value of beta to the power 30 divided by 9 alpha to the power 10. Alpha to the power 30 divided by 9 beta to the power 10 whole square is 3, 9, 1, and 1 by 9. Attempt this. It's a quadratic equation given to you. X square minus 3x plus 9 equal to 0. And then take 5 minutes. You can take LCM. LCM लेने के बाद आ जाएगा 9 to the power 20 alpha beta to the 20 in the denominator. है ना? Sum of roots is 3. Product of root is 9. So this would be alpha to the power 40 plus beta to the power 40 whole square by alpha into beta is 9. So 9 to the power 40. क्या करना चाहिए?
Anyone? If you want to reduce this, you can further reduce, but I doubt it will help you. This you can write as alpha to the power 20 plus beta to the power 20 whole square minus 4 alpha 20 beta 20, right? Then again alpha 20 plus beta 20 you can replace alpha 10 beta 10, but this will keep on going on. So it will not help. तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार रूट निकालो, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आ रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. It is 3 plus minus root 27, that is 3 root 3 iota by 2. Is it? If you take the roots are complex because d is negative. So that gives you alpha beta as, if I take 3 common, 1 by 2 plus minus root 3 by 2 iota. It is a complex roots. So alpha I can take as the positive one, which would be cos, I convert in polar form, cos pi by 3 plus iota sine pi by 3. The other root I take as a negative, which is 3 into cos pi by 3 minus iota sine pi by 3. So I found the roots. These roots are complex, and I've converted these complex root into polar form because this method will not work. Why did I convert to polar form? You should know these two results, that this is a formula called Euler formula. Euler formula or Euler rule. E to the power iota theta is always cos theta plus iota sine theta. One more thing is De Moivre's rule. And it is cos theta plus iota sine theta raised to power n is always cos n theta plus iota sine n theta. First, you need to write these two. Euler formula or Euler rule and De Moivre formula. So whenever you have a complex number in polar form raised to some power, that power gets multiplied. तो फर्स्ट वी फाइंड द रूट्स, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया. अब मुझे अल्फा टू द पावर 40 निकालना है, इजीली आ जाएगा यूजिंग De Moivre's रूल. ये वाला यूज हो रहा है यहाँ पे. तो आई कैन फाइंड अल्फा टू द पावर 40. क्या आएगा अल्फा टू द पावर 40? This will be 3 raised to power 40 outside. And when you raise this to the power 40, this 40 will be multiplied with the angle. So this would be cos 40 pi by 3 plus iota sine 40 pi by 3. So alpha to the power 40 will be 3 raised to power 40. Cos 40 pi by 3 कैसे solve करोगे? Cos 13 pi plus pi by 3. Am I right? Plus iota sine 13 pi plus pi by 3.
40 पाई बाई 3 को हमने लिखा 13 पाई प्लस पाई बाई 3. Then you know this rule that किसी भी t रेशियो में trigonometric function में can always neglect multiples of 2 pi. You can always neglect multiple of 2 pi. तो 12 पाई नेग्लेक्ट हो जाएगा. सो दिस वुड बी 3 raised to power 40. 12 पाई हटा देता हूं मैं, तो cos पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 3. पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव. साइन भी नेगेटिव होता है. अल्फा टू द पावर 40 आएगा 3 raised to power 40 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 3. साइन भी नेगेटिव होता है, तो माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3. तो ये अल्फा टू द पावर 40 हमने सॉल्व किया. सिमिलरली बीटा टू द पावर 40 इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 raised to power 40 माइनस कॉस पाई बाई 3. वो प्लस हो जाएगा आयोटा साइन पाई बाई 3. दोनों को हमें ऐड करना है. अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 40 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? अल्फा टू द पावर 40 प्लस बीटा टू द पावर 40 विल बी -2 टाइम्स 3 raised to power 40 कॉस पाई बाई 3. कॉस पाई बाई 3 कितना हुआ? 1/2. तो 1/2 से 2 कट जाएगा. So now we get alpha to the power 40 and beta to the power 40 as -3 की पावर -3 raised to power 40 होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये टर्म कितना था? दिस वाज 9 to the power 20. 9 to the power 20, 9 to the power 20. So this is how you solve this question. ये हो जाएगा 9 to the power this is 3 to the power 40, 3 to the power 40. ये कट जाएगा पूरा. आंसर विल बी 1. तो यहाँ पे हमने डिमाइवर रूल यूज कर लिया. वेन एवर यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू हायर पावर वी कैन यूज दिस. एनी क्वेश्चन? Question number 20 of mock test 6. Let greatest integer t denote the greatest integer function if integral 0 to 1 greatest integer 1 plus x square plus x to the power 4 dx equals to a. Then 36a minus 25a square plus 8a cube minus a4 is minus 19, 18, 19 and minus 21. So this is basically integration of greatest integer function. लिख लो एक बार.
In the greatest integer function, you break the limits of x in such a way that the term inside the greatest integer become integral. That is the whole thing. Break the limits in such a way that the term inside the greatest integer are integer. x की वैल्यू 0 से 1 है, बट बिटवीन 0 and 1 किस x की वैल्यू के लिए 1 + x² + x4 would be integer. Value of x is 0 and 1. हमें देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए 1 + x² + x4 इज इंटीजर. एक काम करते हैं, पहले 1 + x², इसमें x को 0 डालो, क्या आएगा? इसमें अगर x को 0 डालोगे तो 1 आएगी वैल्यू, है ना? 0 पे ये 1 आ रहा है, और जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा. So when x is 0, the term inside the greatest integer is 1. And when x is 1, the term inside the greatest integer is 3. So between 1 and 3, how many integers are there? Only one integer is there, which is 2. तो जब ये 2 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? So when 1 + x² + x4 is 2, we need to find the value of x. ये निकालना है मुझे. तो 1 + x² + x4 = 2 लिखो, उसको सॉल्व करो एंड टेल मी x कितना आ रहा है. बिकॉज 1 + x² + x4 की वैल्यू बिटवीन 1 and 2, 1 and 3 सिर्फ 2 ही हो सकती है, जो कि इंटीजर है. तो उसको मैंने 2 से इक्वेट किया. अब इसको डी मेथड से सॉल्व करते हैं. x² आएगा -b ± b² -4ac. तो x² की वैल्यू आ गई. पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी बिकॉज 0 1 में x के नॉट बी नेगेटिव. सो आई टेक दिस वैल्यू. I can't take negative value because x² can't be negative. √5 - 1. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन प्लस माइनस, बट आई कांट टेक नेगेटिव वैल्यू. तो मुझे x की लिमिट मिल चुकी है. जब x की वैल्यू √5 - 1/2 होगा तो इंटीजर बन जाएगा 2. यहां तक देखो, समझ में आया नहीं आया? द टर्म इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर हैज टू बी इंटीजर. 1 and 3 के बीच में इंटीजर सिर्फ 2 था. हमने उसको 2 से इक्वेट किया, x की वैल्यू निकाल ली. अब लिमिट ब्रेक करोगे. लिमिट हमेशा x की डलती है. तो पहला इंटीग्रल 0 to रूट √5 - 1/2 dx. द सेकेंड इंटीग्रल √5 - 1/2 to 1. लिमिट हमेशा x की डलती है, देख लो यहाँ पे. तो जब x की वैल्यू 0 से लेके ये है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 1 and 2 के बीच में. 1 and 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1. ये 1 आ जाएगा. और जब लिमिट है दिस टू दिस, द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज बिटवीन 2 and 3. 2 and 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 2 हो गया. और ये कितना दे रखा है हमें? a के इक्वल दे रखा है. लिमिट हमेशा x की डलेगी, वैल्यू हमेशा फंक्शन की आएगी. 1 + x² + x4 इज बिटवीन 1 and 2 व्हेन x इज 0 to this √10. उसका 1 हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. इसका इंटीग्रेशन x हो गया. लिमिट 0 to √5 - 1/2. 2 बाहर ले लो, इसका इंटीग्रल x हो गया. लिमिट्स √5 - 1/2 to 1 इज इक्वल टू a. लिमिट डाल दो.
माइनस से पहले अपर लिमिट डलती ना, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, एक कट जाएगी टर्म। यहां तक देख लो एक बार। लुक एट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ए की पावर 4 भी है, ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी, ए भी है। तो वी कांट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज देयर एंड गेट द आंसर। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे ताकि रूट हट जाए? गेट टू अदर साइड एंड स्क्वायर बोथ द साइड्स कर लो। 2 को राइट साइड में ले जाओ, स्क्वायर बोथ द साइड्स। एक रूट हट जाएगा, फिर दोबारा रूट के टर्म आइसोलेट करना, फिर स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो। आइसोलेट द टर्म ऑफ द रूट एंड स्क्वायर बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। एक रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 4। फिर रूट हटाना, बिकॉज इसमें रूट का ही नहीं आ रहा है। तो 2 ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 8। 1 को राइट में ले जाओ, 2 ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 9। दोबारा स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर अगेन, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएगा ऐसे क्वेश्चन एक। नाउ यू कैन अप्लाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऑन द राइट साइड। यूज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर आप क्या समझा सकते हैं, आपने लिमिट्स कैसे ली हैं एक बार फिर से? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट का तरीका होता है कि ये जो टर्म है ना इनसाइड, ये इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया ना, ये 1 है और ये 3 है। जब x 0 तो ये 1 हो जाएगा, जब x हाँ। 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 1 एंड 3 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है? 2 आता है, तो 2 डालो उसको। इसको 2 से इक्वेट कर दिया था मैंने। ओके, ठीक और है, फिर ओके। x की वैल्यू निकालनी। थैंक यू सर। इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। अब इसको स्क्वायर करो दोनों साइड। तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4a4 बी स्क्वायर 64 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 2ab 32 ए क्यूब, देन 2ac तो जाएगा 36 ए स्क्वायर, देन 2 दिस 144 ए। देखो ये आएगा। आई यूज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। A4 आ रहा है, इसमें ए स्क्वायर भी आ रहा है, ए क्यूब भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सारी टर्म हमारी जो हमें चाहिए। तो 0 = 4a4 100 ए स्क्वायर हो गया, दिस एंड दिस। 32 ए क्यूब हो गया, 144 ए आ गया, एंड 81 - 5 कितना हुआ? 76। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो, तो आएगा 0 = a4 प्लस 25 a² माइनस 8 a³ माइनस
36a प्लस 19। हमें चाहिए -a4 -25a² -36 प्लस 36a। मतलब सारी टर्म को लेफ्ट में ले लो, आंसर आ गया। इस पूरी टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, ये आ जाएगा। आंसर इज +19। सो दिस वाज इंटीग्रेशन ऑफ, हमने कई सारे क्वेश्चन किए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले। ऑलराइट। पी ट्रांसपोज जीसीडी ऑफ एम एन एन। जीसीडी का मतलब होता है HCF। जब भी मैट्रिसेस के क्वेश्चन में हायर पावर इन्वॉल्व होती है वो उतना इजी क्वेश्चन होता है। एक पैटर्न बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाती है, आंसर इजीली हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन डरावने होते हैं बट इजीली हो जाते हैं। कर लो, क्वेश्चन को पहले समझ लो हो क्या रहा है। 5 मिनट्स ट्राई करो। पी ट्रांसपोज भी है इसमें, पी भी है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, पी को पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। फाइंड पी इंटू पी ट्रांसपोज, उससे आइडिया लग जाएगा। पी को पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है।
क्या आ रहा है पी इंटू बी ट्रांसपोज? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, बाकी कोई नहीं कर रहा, तुम ही कर रही हो लग रहा है। पी इंटू पी ट्रांसपोज आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बी की पावर 10 आ रही है ना? तो पहले ऐसा करते हैं, बी स्क्वायर निकालते हैं, बी इंटू बी। तो बी इंटू बी कितना हो गया? पी ए पी टी, पी ए पी टी। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो पी ए आई ए पी टी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये आ गया, तो बी स्क्वायर हो गया पी ए स्क्वायर पी टी। देन वी कैन फाइंड पी क्यूब बी क्यूब। हाउ विल यू फाइंड बी क्यूब? बी स्क्वायर इंटू बी। बी स्क्वायर इज पी ए स्क्वायर पी टी and b is pa pt. Again, this would be I. So b cube would be pa cube pt. So now we can generalize from here कि similarly b to the power 10 कितना हो जाएगा? pa to the power 10 into pt. So similarly b to the power 10 would be pa to the power 10 pt. So we can find c now. C is pt into b to the power 10, which is pa to the power 10 pt into p. ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया आई, ये भी बन गया आई। तो सी बेसिकली आ गया ए टू द पावर 10। तो वी हैव रीच्ड हियर। अभी आंसर नहीं आया है, बट हमें ये पता लग गया सी क्या है। सी इज ए टू द पावर 10। अब ए को 10 बार तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं तुम, तो ए को मेरे ख्याल से यू फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यू, तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं। तो एक काम करो, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, उससे तुम्हें पता लग जाएगा ए की पावर 10 के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं। करो जल्दी से। टेल मी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ए स्क्वायर का A11 क्या आ रहा है? 1/2। हाफ। 1/√2 का स्क्वायर। और ये कितना आ रहा है? 1। 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो ए से दोबारा। ए क्यूब का A11 क्या आ रहा है? ये वाला एलिमेंट। ये आएगा 1/√2 की पावर 3। ये वापस 1 आ जाएगा। तो तुम्हें पता लग पा रहा है क्या हो रहा है इसमें? ए टू द पावर 4 में आएगा 1/√2 टू द पावर 4। दैट मीन्स ए टू द पावर 10 में क्या होगा? 1/√2 टू द पावर 10, एंड दिस विल बी 1। तो उसने पूछा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया? 1/2 की पावर 5 प्लस 1, 1/32 प्लस 1, दैट इज 33/32। 33/32 बोथ आर को प्राइम, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 33, n की वैल्यू 32, दोनों का सम 65।
तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन भी तुम वे डुएबल होते तुम भी लोग कर पाओगे वो। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, वेक्टर 3D हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इनमें डिग्री और डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं होगी। MT4 का क्वेश्चन नंबर 4। For the system of equations x plus lambda y minus z is equal to 1, x plus 2y plus lambda z is equal to 2, x plus 2y plus z is equal to 2. Which one of the following is not correct? ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं, which is not correct. करेक्ट वाले में तो इजी होता है सॉल्व करने, इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, और तो क्या है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना। It has unique solution if lambda is not a root of equation t square minus 3 lambda plus 2 equal to 0. Option B. It has no solution if lambda is 2. It has unique solution if lambda is not a root of t square minus t minus t equal to 0. It has infinitely many solutions. One lambda y minus z. All right. You know the concepts. If determinant A is not 0, then system has unique solution. If determinant A is 0, then two conditions, no solution or infinite solution. No solution के लिए क्या करते हैं हम? D1
D2 D3 में से एक नॉन जीरो आएगा, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दिस एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि इनफाइनाइट में क्या होगा, D1 D2 एंड D3 all will be zero. So we use this. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए को नॉन जीरो करो फॉर यूनिक सोल्यूशन। Lambda not equal to 1 and lambda not equals to 2. ओके, तो पहला हमने किया डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट 1 लैम्डा -1 1 2 लैम्डा 1 2 1 नॉट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रही होगी ना। lambda square minus 3 lambda plus 2. लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट गिव्स अस लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 and 2, राइट। तो अगर लैम्डा 1 and 2 नहीं होगा देन इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। इट हैज यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट अ रूट ऑफ दिस। मतलब ये करेक्ट है, बट ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये करेक्ट है कि जब लैम्डा 1 and 2 होगा या इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। नहीं होगा तो इफ लैम्डा इज नॉट, द लैम्डा की वैल्यू 1 and 2 नहीं होनी चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए, वो सही है। इट हैज यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट अ रूट ऑफ दिस। देखो घुमा फिरा के लिखा हुआ है इसमें। तो अगर लैम्डा 1 and 2 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है, बिल्कुल सही है। इट हैज नो सोल्यूशन इफ लैम्डा इज 2। नो सोल्यूशन पे आ जाते हैं अब। लैम्डा को 2 डालो एक बार। लैम्डा 2 को 2 डाल के तो जीरो आ ही जाएगा, है ना। तो मैं D1 निकाल लेता हूँ। D1 कैसे आएगा, फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करो। D1 D2 D3 में एक नॉन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम को मैंने रिप्लेस किया, लैम्डा को 2 डाल दिया, ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालो क्या आ रही है। अगर D1 जीरो आ गया तो हम फिर D2 को निकालेंगे, D2 भी जीरो, फिर D3 निकालेंगे। अगर मान लो तीनों जीरो आ गए इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लैम्डा इक्वल टू के लिए है ना, हमें लैम्डा इक्वल टू के लिए देखना था। D1 देखो क्या आ रहा है, मैंने लैम्डा को 2 डाल दिया। हुआ
कितना? -2 + 4, 2 आ गया ना, मतलब d1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इट हैज नो सोल्यूशन एट λ2। ये भी सही है बट ये आंसर नहीं है, इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब लैम्डा जब 2 होगा तो d1 नॉन जीरो आया, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 पे इट हैज नो सोल्यूशन। मैंने फोर्थ ऑप्शन पूरा नहीं लिखा था क्या? फोर्थ ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू 1 पे इट हैज इनफाइनटली मेनी सोल्यूशन एट लैम्डा इक्वल टू 1। तो या तो तुम इसको सेट डी का ऑप्शन देख लो, चेक करके लैम्डा को 1 डालो, d1 d2 3, अगर तीनों 0 आते तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आते तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, या फिर ये देख लो तुम, इट हैज यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट रूट ऑफ दिस। इसके रूट क्या है? इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आएंगे? 2 and 1, है ना? It has unique solution if lambda is not 2 or 1. -1, हम्म 2 और -1 आ रहा है। 2 और -1 आ रहा है। हाँ -1 गलत हो गया नहीं। हम्म तो ये गलत हो जाएगा, तो दिस इज द वन। -1 पे तो यूनिक सोल्यूशन है ना उसका, -1 पे यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। तो ये था। तो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करो।
वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6, ठीक है। हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज द वर्टेक्स। कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, and for this parabola what is the axis? Axis is basically x-axis. Equation of x-axis would be y is equal to 0. Axis is this. Draw करो इसको।
तो ये वर्टेक्स हो गया टू, -2, 2, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया y इज इक्वल टू -2, ठीक है। द पॉइंट इज ऑन द a, b इज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ना, तो b तो हमें मिल गया -2। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट, दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। When you can rule out two options, you can always take a chance. But बिल्कुल सही अगर तुम्हें करना है तो एक कॉन्सेप्ट होती है कि if there is a parabola and you have some point on axis, say x comma y, you can draw three normals to it. Maximum three normals can be drawn like this. एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन द x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 2a। ये एक रिजल्ट होता है, लिख लो। Three normals can be drawn from a point x comma y if x is greater than 2a। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट हमारा है एक्सिस पे ये वाला, है ना। x कोऑर्डिनेट है x+2, तो x+2 शुड बी ग्रेटर देन 2a। और a की वैल्यू कितनी निकाली थी तुमने, a की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Sometimes you come across questions which are easy but lengthy in terms of calculations. Question 1, mock test 6. इसमें डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है और पेशेंस भी है, चाहिए बहुत ज़्यादा। बट 4 मार्क्स श्योर मिलेंगे अगर तुमने सही कैलकुलेशन कर ली तो। किसने किया था टेस्ट में क्वेश्चन, किसी ने नहीं किया। अब करो उसको। If it has infinitely many solution, then value of this is k square is infinitely many solution की पहली कंडीशन तो ये होती है कि d has to be, determinant of a has to be 0।
k minus root 2y plus root 5z root 5x plus root 3y minus 2 root z. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0. तो या तो उसको फिर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे या वैसे करोगे, कर लो. स्पेंड टाइम 10 मिनट्स. इतनी बात पक्की कि 4 मार्क्स 100% मिलेंगे अगर तुमने सही किया है तो. बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो. या प्रॉपर्टी यूज करके एक जीरो बना दिया तब भी हो सकता है. क्लू जीरो करना है. इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि यू अप्लाई सम प्रॉपर्टी मेक सम टर्म इक्वल टू 0, या अदरवाइज सिंपली ओपन इट अप. या तो हर टर्म को रूट के अंदर ले लो. जैसे 3√15 है उसको लिख लो. 3 को अंदर ले लो 9 आ जाएगा. √135. 5√6 हो जाएगा. 25 × 6 1 √150. एंड देन सॉल्व करना इजी होगा तुम्हारे लिए. सो विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो यू कैन एक्सपैंड एंड मार्क्स मिल जाएंगे. फिर करो आराम से. कैसे करना है? डायरेक्ट ओपन करके. कर लो. 10 मिनट्स सॉल्व इट. ठीक है. 10 मिनट में अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके +4 मिलते हैं, इट्स एन अचीवमेंट. इट्स नॉट बैड एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न. कर लो.
तो जो के वाली टर्म लिखी है आपने आगे, उसमें दोनों माइनस के आ रहे हैं मेरे। रूट मतलब -3√30 एंड -3√30 प्लस दोनों माइनस आ 5। रहे हैं। जो प्लस नहीं हो गया, ये माइनस प्लस हो गए थे तो। ये -√2 था ना, तो ये प्लस हो गया। ओके। ओके। वही ना, इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए। देखो कहीं गलती तो नहीं हुई है। अब पहला ब्रैकेट ले लेते हैं। के वाला, इसमें से 9 बाहर निकाल सकते हो। 9×3 = 15 हो जाएगा। 15√5। इसमें से 4 में से 2 आ सकता है। 10√3। ये कट के 30 हो जाएगा। √150 को क्या करोगे? 25 × 6, है ना? 25 का 5 आ गया √6। फिर -15 √15 बचेगा ये। √3 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से मैं। 15√5, 10√3। ये कट जाएगा। के आ गया √3। k² = 3। ये था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। x-5/3।
ये इजी क्वेश्चन है, कर लोगे, करो उसको भी। वेक्टर 3D से क्वेश्चंस डुएबल होंगे। अटेम्प्ट दिस। इमेज द पॉइंट दे रखा है 1 to 0। अल्फा बीटा लैम्डा का इमेज दे रखा है ऑन द लाइन। ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको के ले लो, एनी पॉइंट निकालो के टर्म में। सो एनी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ के, एम आ जाएगा 3k+5, k+12, 2k+10। Then you can find dr of qm. इसके dr निकालो qm के। 3k+5 -1, k+12 -2, 2k+10 -0. You have drs of the line, and they are perpendicular. Perpendicular में dr के प्रोडक्ट का सम 0 कर दो, k आ जाएगा। Sum of the product has to be 0. Find k, you know the k, then you know point, midpoint आ जाएगा तो p आ जाएगा, फिर डिस्टेंस pq आ जाएगा।
के कितना आ रहा है? के निकाला किसी ने? 3 आ रहा है। 3? 3 नहीं आएगा। -3 हम्म। के -3 वापस डालो, एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, 9, 4। मिड पॉइंट से अल्फा बीटा लैम्डा निकालो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। फाइंड अल्फा बीटा लैम्डा यूजिंग मिड पॉइंट। एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन क्यू। 360। हम्म। अल्फा बीटा गामा कितना आ गया मिड पॉइंट से? -9, 16 and 8. So then you apply distance formula. Hmm. -9 and 1, 10 square, 2 and 14 square, 8 and कितना आ रहा है? 360। They ask PQ square, 100, 196, 64। इजी क्वेश्चन। तो वेक्टर 3D से इजी क्वेश्चन आएंगे। दीज आर डूएबल क्वेश्चंस, कर पाओगे तुम लोग। पीएनसी से भी कई बार इजी आ जाते हैं, बाय प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी।
Box contains 7 red, 9 white balls. The number of ways of drawing 8 balls has that there are at least 3 balls of each color. पहले क्वेश्चन को समझो, सोचो क्या यूज हो रहा है, देन आंसर. Spend more time in understanding the question than solving. कैलकुलेशन का ध्यान रखना है इसमें. कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है इसमें? सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन यूज होगा. डी आ रहा है. डी आ रहा है. 7 रेड 9 बॉल हैं, तो 7 रेड में से 3 रेड निकाल लो. एंड 8 चाहिए हमें, तो वाइट में से 5 आ जाएगी. ये हो सकता है ना. यस. और 9 में से 3 रेड ले ली, तो 7 में से 5 ले सकते हो. एंड 4 ईच. और क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन? 4 ईच. कर लो.
7C3 means open 7 3 places. 7, 6, 5 by 3 factorial, which is 6. 9C5 means 9C4, open 9, 4 places by 4 factorial, 4, 3, 2, 1. 9C3, 9, 8, 7 by 3 factorial, which is 6. 7C5 would be 7C2 by 2 factorial. Again, 9C4 is 9, 8, 7, 6 by 4 factorial. Into 7C4 is 7C3, 7, 6, 5 by 3 factorial, which is 6. So समझने का पूरा सॉल्व भी करना है, कहीं भी गलती फिर आंसर नहीं आएगा. फाइव इंटू टू 10 हो जाएगा. 7, 9, 7. ओके. 9 4 36, 7 to 7 49. 9 into 7 into 7 into 5 into 2, 10. In fact, the first term and the last term is the same only, no? Yeah. ये दोनों टर्म सेम ही आइडेंटिकल है ये. इसको 2 टाइम्स कर दें फिर. 2 into 49 into 90. 36 into 49. 49 कॉमन ले लो. 9 6 54. 4 आना चाहिए एंड में, मतलब ये दोनों ऑप्शन रूल आउट हो गए. टू 1 6. So it'll be 216 into 49. The answer is 10584. अब ऐसा करो तुम लोग ना, हर चैप्टर के ना रिजल्ट्स लिख लो, बना लो हर चैप्टर के रिजल्ट्स. एंड जो भी हमने क्वेश्चन क्लास में किए हैं उनको दोबारा या तो सॉल्व करो, टाइम है तो. नहीं है तो जो डिफिकल्ट है उनको सॉल्व कर लो, इजी वंस को जस्ट गो थ्रू देम. सो दिस हाउ यू रिवाइज इट. एवरीथिंग यू कांट सॉल्व नाउ, इतना टाइम नहीं है. तो हर चैप्टर के रिजल्ट्स लिखो, फॉर्मूले, और एक दिन में ट्राई टू सॉल्व 5 क्वेश्चन ईच फ्रॉम 5 डिफरेंट चैप्टर्स. जैसे कि एक दिन में तुमने स्टैटिस्टिक्स पकड़ लिया, प्लस इंटीग्रेशन, फिर वेक्टर, एंड देन वन मोर चैप्टर मे बी पीएनसी. 4 चैप्टर पकड़ के 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सबके कर लिए, तो सबके फॉर्मूले रिजल्ट तुम्हें रिवाइज भी हो जाएंगे, और फिर ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने ये टॉपिक नहीं किया है. नेक्स्ट डे यू टेक सम अदर टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी ले लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया. ट्राई टू मिक्स चैप्टर्स जिसमें तुम्हें लगता है कि
काफी दिन हो गए इसके क्वेश्चन किए हुए, तो मिक्स क्वेश्चंस करो अलग अलग 4-5 चैप्टर के, तो सारे फॉर्मूले भी याद रहेंगे और रिवीजन में पूरा हो जाएगा. Right? So that is it. Ending the class. See you next time. थैंक यू सर. Bye. थैंक यू सर.